Hello dear students, welcome to another module of history in which we will be learning about the module when people rebel. So let's see what are the sub-modules that we will be doing in this part of the video. So the name of the module is When People Rebel. The name tells us that from this period of time in India, the people had started to revolt against the British East India Company. So in this sub-module, we will be learning about how Nawabs who used to rule their kingdoms gradually lost their power, the peasants and the sepoys and their revolts and their mutinies, responses to several kinds of reforms from the peasants and sepoys, and a mutiny that becomes a popular rebellion. From which place to which place? From Meerut to Delhi. Now, first we will be studying about how Nawabs lose their power. Now, since the middle of the 18th century, Nawabs and Rajas gradually lost their authority and honor, and residents had been stationed in many courts. That means the British residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers were reduced. Why? So that the British could totally expand their dominance over our country. Their armies were disbanded, they were dismissed. Their revenues and territories were also taken away from them in stages. And what happened was that many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. However, the company, which was very confident of its superiority and military powers, turned them down. Why was it very confident of its superiority and military powers? Because there was no foreign power as strong as the British East India Company, which had laid its roots deep down in the territory of India at that time. So in 1801, a subsidiary alliance was also imposed on Awadh. And in 1856, it was taken over in the name of the British rule and was needed to ensure proper administration. So what we can understand is that the British people had totally taken into their grip our country, India. In 1856, the Governor General Canning decided that the last Mughal king would be the Bahadur Shah Zafar, who was still alive at that time. So क्या हुआ, नवाब्स और राजा जो इंडिया में पहले से रूल कर रहे थे, जब ब्रिटिश आए मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी के टाइम से उन्होंने अपना पावर और अथॉरिटी ग्रेजुअली लूज कर दिया. और क्या हुआ, रेसिडेंट्स जो कि अलग अलग स्टेशन में थे और बहुत सारे कोर्ट्स में भी थे ऑफ द ब्रिटिश पीपल, और रूलर्स का जो फ्रीडम था वो भी रिड्यूस हो गया, उनका आर्मीज भी ले लिया गया, और जो रेवेन्यूज उनको मिलता था और उनका जो टेरिटरीज था वो भी उनसे छीन लिया गया स्टेज बाय स्टेज. बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज थे जिन्होंने क्या किया, कंपनी के साथ एक नेगोशिएशन, एक अंडरस्टैंडिंग में आना चाहा सो दैट दे कुड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. लेकिन कंपनी तब इतना ही अपने पावर को लेके कॉन्फिडेंट हो गया था और अपने मिलिट्री पावर्स इतना ही ज्यादा था कि वो लोग, उनको पता था कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे उनके सामने, तो कॉन्फिडेंटली उनको इनकार कर दिया. और 1801 में क्या हुआ, सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया नवाब मतलब ऑन अवध, और इन 1856 अवध आ गया ब्रिटिश रूल के अंदर. एंड द ब्रिटिश पीपल, उन्होंने क्या किया, अवध को अपने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में और कंट्रोल में ला लिया. और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग जो थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब बहादुर शाह जफर वुड बी द यही लास्ट मुगल किंग होगा. इसके बाद से क्या होगा, पूरा इंडिया को रूल करेगा द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी.
उसके बाद क्या हुआ, एक जो पीजेंट्स और सिपॉइस थे कंट्री साइड में, पीजेंट्स और जमींदार वो बहुत ही अनॉयड थे, इतना ज्यादा टैक्स उनपे दिया जाता था और रेवेन्यू कलेक्शन मतलब टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो बहुत स्ट्रिक्ट मेथड्स अप्लाई किया जाता था, बहुत ओप्रेसिव, बहुत अत्याचारी व्यवहार उनके साथ किया जाता था टैक्स उनसे लाने के लिए, इससे वो लोग बहुत अपसेट थे। बहुत पीजेंट्स अपना लोन चुका नहीं पाते थे और मनी लेंडर्स उनको लोन देने के बाद उनसे लोन वापस लेने के लिए बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे उनके ऊपर। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो पीजेंट्स जो जमीन उन्होंने वर्षों तक अपने फैमिलीज में रख के उसको उस पे एग्रीकल्चर किया हुआ था, वो उनसे धीरे धीरे छीन लिया गया। और इंडियन का जो ब्रिटिश लोग क्या करते थे, एक बहुत बड़ा आर्मी मेंटेन करते थे और उसमें इंडियंस को ही एम्प्लॉय करते थे, मतलब इंडियंस को यूज करके वो इंडियंस को ही सब्जुकेट करके रूल करते थे। ये धीरे धीरे सिपॉइस को पता चलने लगा। क्या हुआ, इंडियन का जो सिपॉइस थे वो अपने पेमेंट को लेके हैप्पी नहीं थे, उनको जो बेनिफिट्स दिया जाता था उनको लेके हैप्पी नहीं थे, और सर्विस का कंडीशन को लेके भी हैप्पी नहीं थे। कुछ न्यू रूल्स भी आए जो कि उनके रिलीजियस सेंसिबिलिटीज और बिलीव्स को, मतलब उनका जो धर्म का विश्वास था उनको हर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि सी के उस पार जाना। इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने अपना रिलीजन खो दिया, धर्म खो दिया और अपना कास्ट भी खो दिया। और सिपॉइस क्या किया, वो भी रिएक्ट करते थे पूरे देश में हो रहा अत्याचार के विरुद्ध। और क्या हुआ, ये जो पीजेंट्स का जो एंगर थे ये सिपॉइस के बीच में बहुत जल्दी से स्प्रेड हो गया। So what happened was that in the countryside, the peasants and the zamindars, they were highly annoyed with the taxes and the rigid methods of the British East India Company. And what happened? They gradually started revolting against the English people. So, dear students, as we can understand, that there has been a little bit mistake in my writing. Hold on. So what happened? The anger of the peasants, it quickly spread among the sepoys. Why did the peasants face such a miserable condition? Because many peasants failed to pay their loans to the moneylenders and gradually they lost their lands that they had tilled for generations. The Indian sepoys were also unhappy about their pay, their allowances and the conditions of service. Also, some new rules violated their religious sensibilities and beliefs like crossing the sea, resulting in losing their religion and caste. And what happens is sepoys also reacted to what was happening in the countryside. So the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. Now, इस टाइम में क्या हुआ, कुछ रिफॉर्म्स भी हुआ था ब्रिटिश के द्वारा। जैसे कि फर्स्ट रिफॉर्म क्या था, ब्रिटिश ने कुछ लॉज पास किया, जैसे कि विडोज का दोबारा से शादी करवाना, जो विधवा थे उनका, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन को प्रमोट करना और क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्रीली परफॉर्म करने देना और यहाँ पे अपना खुद का लैंड और प्रॉपर्टी भी मेंटेन करने देना। और क्या हुआ, 1850 में एक नया लॉ पास किया गया जहाँ पे क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना बहुत इजी हो गया और एक इंडियन जो कि प्रॉपरली कन्वर्टेड होगा क्रिश्चियनिटी में, उसको
अपना मतलब पेरेंट्स का जो प्रॉपर्टी होगा और उसका एंसेस्टर्स का, उसका पूर्व पुरुष का जो प्रॉपर्टी होगा उसमें भी उनका उसका पूरा हक होगा। ये दो जो पिक्चर्स है इसमें आपको दिखेगा, एक है एक कन्वेंशनल विडो का पिक्चर और सेकंड एक सती प्रथा। दीज टू वेयर द सती प्रथा वाज बैन बाय द ब्रिटिश। और विडो, एक बार विडो हो जाने के बाद इंडिया में उसका दोबारा शादी नहीं होता था, लेकिन ब्रिटिश ने ये रूल पास किया कि the widows will be allowed to get married again. So what happened? The British passed laws to stop the practice of sati and to encourage the remarriage of the widows. They also promoted English language education. And what happened? The company also allowed Christian missionaries to function freely and even own land and property. And finally, in 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier and allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. So, not only did they attack India on a civil or a territorial or an administering level, but they had also started to attack the religious conditions of India. They were trying to win over people from other religions into Christianity by giving them several lucrative offers and benefits and privileges and also concessions. Now, what is a mutiny? A mutiny is a kind of a small revolt. And now we will study how a small mutiny became a popular rebellion. एक छोटा सा विद्रोह कैसे एक पूरा कंट्री को हिला देता है, एक बहुत बड़ा रूप धारण करता है, ये हम सीखेंगे। एक बहुत बड़ा रिबेलियन या फिर विद्रोह स्टार्टेड हुआ मई 1857 में, जो कि कंपनीज का ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में था, इसका प्रेजेंस को ही मिटाने चला था। क्या हुआ? सिपॉय मतलब ब्रिटिश जो आर्मी मेंटेन करते थे, उनमें जो इंडियन ऑफिशियल्स काम करते थे, उन्होंने पूरे ब्रिटिश के विरुद्ध बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिया था। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, हमारे देश का सोसाइटी का बहुत सारा मतलब पीपल क्या क्या बहुत अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग सेक्शंस का वो भी विद्रोह करना शुरू कर दिए थे। What happened was that a massive rebellion had started in May in 1857, which had threatened the company's presence in India. And what happened? The sepoys mutinied in several places beginning from Meerut. And a large number of people from different sections of the society also rose in rebellion against the British East India Company when in May 1857. Now, we will study about the extent of the spreading of this rebellion. कहाँ से कहाँ तक spread हुआ था? मीरठ से दिल्ली तक। कैसे कैसे हुआ था? इस इवेंट को मैंने 7 पॉइंट्स में भाग किया है। सो क्या होगा, आप एक के बाद एक अगर कंसिक्यूटिवली याद रखेंगे तो आपको पूरा इवेंट याद रहेगा। Just read it like a story, so it won't be boring to you. क्या होगा? 29 मार्च 1857 में एक यंग सोल्जर जिसका नाम था मंगल पांडे, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया क्योंकि उन्होंने ऑफिसर्स को अटैक किया था बैरकपुर में। कुछ दिन बाद क्या हुआ? कुछ और सिपॉयज ने मीरठ में उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्मी ड्रिलिंग, जो सुबह को वो लोग प्रैक्टिस करते थे नया कार्ट्रिजेस यूज करके, वो यूज करने से मना कर दिए क्योंकि वो कार्ट्रिजेस क्या किससे उसमें क्या था? काउस और पिग्स का फैट। अब इंडियन रिलीजन में इसको खाना गुनाह माना जाता है, सो इसीलिए उन्होंने ये करने से इनकार कर दिया। दिस मार्क्ड द स्पार्क ऑफ religious revolt in the army. On 9th May 1857 को 85 सिपाहीज को सर्विस से निकाल दिया गया और उनको 10 साल के लिए जेल सुनाया गया क्योंकि उन्होंने ऑफिसर्स का बात नहीं माना था। 10th मई को क्या हुआ? 10 मई को ये जो सोल्जर्स थे वो मीरठ के जेल तक मार्च किए और वहां पे जो सिपाहीज को मतलब अटक किया जा रहा था उनको रिलीज कर दिया, उनको मुक्त कर दिया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को अटैक किया और उनको मार दिया। उनका गन्स और उनके पास जो हथियार थे उनको उनसे छीन लिया और पूरा बिल्डिंग्स और ब्रिटिश
का जो प्रॉपर्टीज था उस सब कुछ पे आग लगा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध घोषणा किया। ये जो पिक्चर मैंने दिया है, ये पिक्चर है मंगल पांडे का। 11 मई की मॉर्निंग को क्या हुआ, ये मेरठ के जो सिपाही थे ये सब पहुंच गए दिल्ली, और उधर के जो दिल्ली के जो सिपाही थे उनको देख जब उनको पता चला इसके बारे में, वो भी विद्रोह में जाग उठे। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में सब सिपाही मिलके रेड फोर्ट पे गए और वहां पे जाके उन्होंने डिक्लेयर किया बहादुर शाही उनका असली लीडर है। तब बहादुर शाह जफर जो कि बहुत ही एजेड थे, बूढ़ा हो चुके थे, उन्होंने लेटर्स लिखना स्टार्ट कर दिया। किसको? सारे रूलर्स को कंट्री का, मतलब पहले से जो थे, ताकि वो लोग आगे आए और एक इंडियन स्टेट फिर से वो लोग बनाए और ब्रिटिश के विरुद्ध वो लोग युद्ध करें। So what happened on 29th March of 1857, a young soldier named Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers in Barakpur. Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut, they refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. On 9th May of 1857, 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. They attacked and killed British officers, captured guns and ammunition, and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the foreigners. Then what happened on the morning of 11th May, sepoys of Meerut reached Delhi and the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion. The soldiers forced their way into the Red Fort and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. The aging emperor accepted the demand and wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. So for the first time, the first major revolt against the British rule happened in India. Now we will study how the rebellion spread. After a week, what happened? Regiment after regiment, the mutiny took off to join other troops at nodal points like, मतलब अब जहाँ पे वो हुआ था वॉर, वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, ये जो म्यूटिनी हुआ था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में इसका नोडल पॉइंट्स था। मतलब यहाँ पे उन्होंने और भी अलग अलग ट्रूप्स के साथ ज्वाइन किया। मतलब उसके बाद क्या हुआ, उस जगह का जो टाउन्स का जो पीपल थे, मतलब जो लोग थे, वो सब आके इसमें ज्वाइन कर दिए। सब अपना हथौड़ा हथियार जो कुछ भी था सब इसमें शामिल हो गए। और किसके विरुद्ध? और इसमें लोकल लीडर्स, जमींदार और चीफ्स भी थे, मुख्य वो लोग भी थे। बहुत फेमस लीडर्स इसमें शामिल थे, जैसे कि नाना साहेब कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, who is one of the most important freedom fighters that the British were afraid of, Kanwar Singh in Bihar, Bakht Khan in Bareilly. So the British, lastly क्या हुआ, ब्रिटिश फोर्स से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल थे इन इंडियन विरुद्ध कर रहे थे जो लोग उनमें, और ब्रिटिश लोग बहुत सारे बैटल्स में इन लोगों द्वारा डिफीट हो गए थे। So this is how the mutiny of 1857 took a large shape from being a small mutiny to a popular rebellion. Thank you.